پاکستان کی خاطر خاک و خون سے لوٹنے والوں کی زہرہ گداز داستان۔ آج میری زندگی کا 1 سال اور بیت گیا۔ اپنی ڈائری میں یہ جملہ لکھتے ہوئے میں ماضی کی تلخ اور حسین یادوں میں الجھ کر رہ گیا۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے مجھے ان الجھنوں سے آزاد کرا دیا ہو۔ یہ میری 3 سالہ پوتی نمرا تھی، جو باہر کچھ دکھانے کے لیے دروازے میں کھڑی بار بار مجھے پکار رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر باہر لان میں آ گیا، جہاں گھر کے تمام بچے اور بڑے پاکستانی پرچم اور چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں سے لان سجا رہے تھے۔ مگر جو چیز نمرا مجھے بڑی بےتابی سے دکھانا چاہ رہی تھی وہ چھت پر لہراتا پاکستانی پرچم تھا۔ وہ اپنے ننھے سے ہاتھ کے ساتھ بار بار پرچم کی طرف اشارہ کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس لہراتے پرچم پر پڑی، میں پھر انہی یادوں میں الجھ گیا جن سے کچھ دیر پہلے نمرا نے مجھے آزاد کرایا تھا۔ اس پرچم کی طرح ان یادوں کے سائے بھی میرے ذہن میں لہرانے لگے۔ میرا نام امیر علی ہے، مگر اب مجھے سیٹھ امیر علی کہتے ہیں۔ یہاں لاہور میں اور میرے بچے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن میری زندگی کا سفر یہیں سے شروع نہیں ہوا۔ اس گھٹن سفر کا آغاز آج سے 79 سال پہلے امرتسر سے ہوا تھا، جو لاہور پہنچ کر ختم ہوا۔ یہ 1925-26 کا زمانہ تھا۔ میں امرتسر کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں میرے ابا و اجداد مدت سے آباد تھے۔ چھوٹے چچا محسن کے سوا باقی سارا خاندان اسی گاؤں میں رہائش پذیر تھا، جبکہ چچا محسن علی گڑھ کے ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ میری والدہ کا خاندان دہلی میں مقیم تھا۔ والد صاحب کا انتقال اس وقت ہو گیا جب میں صرف 2 سال کا تھا۔ میں 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن آمنہ، 2 بڑے بھائی اختر اور شکیل تھے۔ میری عمر اس وقت 8-9 سال تھی جب میں اور میرا ہندو دوست رام داس عرف رامو اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ رامو کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کھیل کود کر گزار دیتا یا کبھی کبھار مندر جا کر اپنے پکوان کا نظارہ کر دیا کرتا تھا، لیکن وہ بھی اس وقت جب اسے اپنی شرارتوں کی وجہ سے گھر والوں سے ڈانٹ پڑنے کا ڈر ہوتا۔ رامو کی شرارتیں اس وقت عروج پر ہوتی جب گاؤں میں کوئی خاص تہوار منایا جاتا۔ اماں بھی کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر شہر میں کلرک لگ جاؤں۔ اس دور میں کلرک کو بھی شہنشاہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جنوری 1929 میں چچا محسن علی گاؤں آئے تو اماں بھی نے مجھے بھی ان کے ساتھ علی گڑھ بھجوا دیا۔ چچا نے مجھے ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ علی گڑھ میں ایک بات مجھے عجیب لگی، وہ یہ ہے کہ میں جب کبھی چچا محسن کے سامنے رام داس اور اس کے گھر والوں کا ذکر کرتا تو وہ چڑھنے لگتے۔ پھر علی گڑھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے آپس میں تعلقات نہ تھے جیسے ہمارے گاؤں میں تھے۔ شروع میں تو میں اس کشیدگی کا سبب سمجھنے سے قاصر تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی، اور 1930 میں علامہ محمد اقبال کے خطبہ الہ آباد نے مجھ پر یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ دراصل محسن چچا کا تعلق مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ سے تھا۔ وہ ہندوؤں کی ذہنیت کو مجھ سے بہتر جانتے تھے۔ چند سال بعد میں چچا کے ہمراہ واپس گاؤں آیا تو وہاں کے حالات بھی کشیدہ محسوس ہوئے، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت اور شدت سے ہوا جب میرے بچپن کے پیارے دوست رامو نے مجھے امیر علی کے بجائے امیر مصلح کہہ کر پکارا۔ ایک شام میں نماز مغرب ادا کر کے مسجد سے واپس گھر آ رہا تھا۔ راستے میں مدرسے کے قریب پہنچا۔ رام داس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، کیا حال چال ہے امیر مصلح صاحب؟ میں تو ٹھیک ہوں رامو، تم سناؤ آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اگرچہ مجھے رام داس کے لہجے سے اس کی دلی نفرت کا احساس ہو گیا تھا، کل کی تو بھگوان جانے، مگر آج میں اپنی دھرتی ماتا کو تم مسلموں سے پاک کرا رہا ہوں، رام داس نے طیش میں کہا۔ اسی اثنا میں ایک ہندو لڑکا آگے بڑھا اور میرا گریبان پکڑ کر درست لہجے میں بولا، ارے مسلے، تم لوگوں کے لیے یہاں کیا رکھا ہے؟ جاؤ نکلو یہاں سے۔
क्यों हमारी धरती माता को गंदा करते हो? अगर बड़े ताया और चचा गुल जमान वहां न आते तो शायद गांव में हिंदू मुस्लिम फसादात का बाकायदा आगाज हो जाता। याद रहे, गुल जमान गांव के चौकीदार थे जिन्हें हम एहतराम से चचा कहते थे। उस वाक़ये ने मेरे जहन पर शिद्दत से असर किया और हिंदू ज़हनियत खुलकर मेरे सामने आ गई कि ये कौम कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती। अम्मा बी ने इस ख्याल से कहीं झगड़ा मजीद न बढ़ जाए मुझे चचा के साथ वापस अलीगढ़ भेज दिया। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और चचा मोहसिन अली के साथ तहरीक पाकिस्तान के जलसों में भी जाता था, लेकिन साथ साथ मुलाजमत की तलाश भी जारी रखे हुए था। चुनांचे 1945 में मुझे एक इदारे में नौकरी मिल गई, मगर ये मुलाजमत एक माह से ज्यादा अरसा न चल सकी। दरअसल इस इदारे में हिंदू छाए हुए थे जिनके सख्त मुआनदाना रवैये के बायस मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हो गया। ये वो दिन थे जब पूरे हिंदुस्तान में तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी और हालात संगीन होते जा रहे थे। मखदूश हालात के पेश नज़र अम्मा बी ने मुझे और चचा मोहसिन को गांव वापस बुला लिया। चंद हफ्ते बाद चचा मोहसिन को अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली जाना पड़ गया। उन्हें गए हुए बहुत दिन हो गए थे। हम सबको बड़ी तशवीश थी कि इतने दिनों से अलीगढ़ से चचा मोहसिन वापस आए हैं या नहीं। अम्मा बी ने मुझे भी अलीगढ़ जाने से रोक दिया क्योंकि मुल्क में कई जगह हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही थीं। आखिरकार 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी शब क़याम पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया, जिसे मुसलमानों ने मुसर्रत और अम्बिस्तात के साथ सुना, मगर हिंदुओं और सिखों के दिलों में नफरत की आग भड़क रही थी। उसी लिए मुसलमान अपने घरों में छुपे बैठे थे। अम्मा बी ने हमें बलवाइयों के डर से बाहर जाने से मना कर दिया था, लेकिन जब अचानक गांव से दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनाई दी तो अम्मा बी के रोकने के बावजूद मैं और अख्तर भाई तेजी से बाहर आए। हमारी आंखों के सामने एक दर्दनाक मंजर था। हिंदू और सिख बलवाई मुसलमान लड़कियों और औरतों को बालों से घसीट कर बाहर ला रहे थे। मुसलमान मर्दों को वहशियाना अंदाज में कत्ल किया जा रहा था। उनके घर नजरे आतिश किए जा रहे थे। माओं के सामने उनके मासूम और कमसिन बच्चों को संगीनों में परो दिया गया था। एक मुसलमान लड़की को इन दरिंदों के शिकंजे से छुड़ाने के लिए मैं जैसे ही आगे बढ़ा और एक संगीन की तेज नोक मेरा बाजू चीरती हुई निकल गई। एक बलवाई ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया था। अख्तर भाई मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े तो उसी बलवाई ने वही संगीन उनके सीने में घोंप दी। मेरे प्यारे भाई ने तड़प तड़प कर जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। जिस मुसलमान लड़की को बलवाइयों से बचाना चाहता था वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी और उसकी लाश ऐसी हालत में पड़ी थी कि मैं ज्यादा देर तक उसे न देख सका। उस वक्त मुझे मालूम न था कि इस दौरान मेरे अपने घर पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। ये ख्याल आते ही मैं अख्तर भाई की लाश वहीं छोड़कर घर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचा तो उसे मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में पाया। शकील भैया, उनका बेटा, दोनों भाऊजे और अम्मा भी कहाँ गए? वो घर के अंदर शोलों की लपेट में आ गए थे या घर छोड़कर चले गए या बलवाइयों ने उन्हें भी अपने जुल्म का शिकार बना दिया। मैं इन्हीं सोचों में गुम बुत बना खड़ा अपने जलते घर को देख रहा था। मैं उस वक्त बुखलाया हुआ था। अचानक मुझे बड़े ताया का ख्याल आया कि शायद अम्मा और बाकी घर वाले उनके हाथ चले गए हों। चुनांचे मैं तेजी से उनके घर की तरफ भागा, लेकिन वहां ताया की मैयत के टुकड़े बिखरे पड़े थे और साथ ही उनके इकलौते बेटे का सर तन से जुदा कर दिया गया था और ताया जान की बहू घर में मौजूद न थी। शायद बलवाई उसे अपने साथ ले गए थे। गांव के बच्चे कुछ मुसलमान अपने बच्चों को लिए स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया। खुशकिस्मती से एक रेलगाड़ी वहां पहुंच गई। चुनांचे लुटे पुटे मुसलमान तेजी से उसमें सवार होने लगे। डब्बों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लिए गए।
जो बदनसीब गाड़ी के अंदर या छत पर सवार ना हो सके वो जुल्म सहने के लिए वहीं रुक गए। रेलगाड़ी लाहौर की तरफ रवाना हुई, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसमें सवार मुसलमानों की तादाद आती रह गई, क्योंकि रास्ते में 2 मरतबा बलवाइयों ने ट्रेन रुकवाकर हमला कर दिया था। गाड़ी पर सवार होने के कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि संगीन लगने से मेरा खासा खून बह चुका था। लाहौर पहुंचकर जब ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां खोले गए तो डब्बों के अंदर से बंद खून सैलाब के माने बाहर निकला, जिसमें इंसानी जिस्मों के टुकड़े भी मौजूद थे। स्टेशन पर चीख पुकार मची हुई थी। मैं उस वक्त होश में आ चुका था, लेकिन मुझे अपना जिस्म खोखला महसूस हो रहा था। औरों के साथ मैं भी एक महाजर कैंप में पहुंच गया, जहां तिबी इमदाद मिली। उस वक्त नौज़ायदा ममलिकत पाकिस्तान इंतज़ामी और सियासी मसाइल से दुचार थी, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। सेहतयाब होने के बाद मैं एक दुकान पर काम करने लगा। इस दौरान मैं लगातार कई हफ्तों तक अपने घर वालों और अजीज़ों की तलाश में लगा रहा कि शायद वो भी पाकिस्तान आ गए हों। मैं जब सुनता कि आज एक और काफिला भारत से पाकिस्तान आया है तो भागता हुआ स्टेशन पहुंच जाता, लेकिन शायद उनका और मेरा मिलाप जिंदगी में मुमकिन नहीं था। मैंने मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमत के लिए दरखास्तें दे रखी थीं। एक इदारे ने मुझे मुलाजमत के लिए बुलाया और यहीं से मेरी कामयाबियों का दौर शुरू हुआ, मगर मुझे ये सब कुछ अधूरा महसूस होता है और मेरी महरूमियाँ आज तक ख़त्म नहीं हो सकीं। आज मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू रवां थे। रब करीम का लाख लाख शुक्र है कि हमें आज़ादी वतन में आज़ादी से रहना नसीब हुआ। ये आंसू तमाम लोगों की याद में भी हैं जिन्होंने अपनी जानों और आबरूओं का नजराना देकर ये वतन बनाया और जो हम सब से हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। मुझे यूं लगा जैसे उस लहराते हुए सब्ज़ व सफ़ेद परचम के गिर्द इन मासूम लोगों ने एक हाला बना रखा है जो इस आज़ाद वतन पर निसार हो गए। उनमें वो तमाम अजीज़ भी थे जो मुझसे पाकिस्तान आते हुए बिछड़ गए थे। अचानक पाकिस्तान टेलीविज़न पर यह नगमा गूंज उठा, लेकिन मुझे उसके बोल अपने दिल की गहराइयों से निकलते महसूस हो रहे थे। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।